Good morning. Myself, Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. Today, my topic is cytoskeleton. It is included in topic of structure and function of cytoskeleton and its role in motility. अर्थात साइटोपंजर की संरचना एवं कार्य विशेषकर गतिकी के ही संबंध में हम आज चर्चा करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में. द टॉपिक साइटोस्केलेटन और साइटोपंजर may be completed in some points. These are introduction, elements of cytoskeleton, in which microtubules, actin filaments and intermediate filaments. माइक्रोट्यूबल्स के अंतर्गत स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड असेंबली, प्लस एंड माइनस एंड्स ऑफ ए माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोट्यूबुल डायनेमिक्स, माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन्स in which non-motor proteins and motor proteins. Motor proteins are classified into three: kinesins and kynectin, myosin, dyneins and dynectin. Microtubules in cilia and flagella and microtubules in cell division. The main point, that is introduction. What is cytoskeleton or cytopunger? Cytoskeleton is found within the cell as a structural network of protein filaments. It provides stability to the cell shape and facilitates a variety of necessary movements within the cell. अर्थात प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में साइटोपंजर उपस्थित होता है, जो कि कोशिका आकार और कोशिका के अंदर व दो कोशिकाओं के मध्य विभिन्न प्रकार के गमन के लिए उत्तरदायी होता है. नाउ cytoskeleton within a cell mainly consists of the following three elements. तीन प्रकार के एलिमेंट्स इसके संरचना में भाग लेते हैं. फर्स्ट इज माइक्रोट्यूबुल्स, सेकंड एक्टिन फिलामेंट्स एंड थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स 20 to 30 nanometer in diameter, which are long protein fibers. Cytoplasmic network of actin filaments, also called microfilaments, about 5 to 7 nanometer in diameter. And intermediate filaments with a diameter of 8 to 10 nanometer. Since these elements play an important role in maintaining the structure and function of the cell. अर्थात कोशिका में पाए जाने वाले साइटोपंजर में तीन तत्व पाए जाते हैं. ये तीन एलिमेंट्स द्वारा निर्मित होता है. लंबे प्रोटीन फाइबर से बना हुआ सूक्ष्म नलिकाएं, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, जिनका डायमीटर 20 से 30 नैनोमीटर होता है. सूक्ष्म नलिकाओं का एक जाल जो कोशिकीय कॉर्टेक्स के बाह्य द्रव्य अर्थात प्लाज्मा लीमा के नीचे साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है. सेकेंड एलिमेंट, दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स. एक्टिन तंतुओं से बना हुआ साइटोप्लाज्म, जिसे सूक्ष्म तंतु कहते हैं, इनका डायमीटर 5 to 7 नैनोमीटर होता है. और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट, 10 नैनोमीटर डायमीटर वाले मध्यस्थ तंतु. इनका साइज
माइक्रोट्यूबुल्स एंड सूक्ष्म तंतुओं के बीच के होने के कारण इन्हें मध्यस्थ तंतु कहा जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म नलिकाएं, एक्टिन फिलामेंट्स तथा इंटरमीडिएट फिलामेंट कोशिका की संरचना और कार्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाउ फर्स्ट एलिमेंट नोन एज माइक्रोट्यूबुल्स या सूक्ष्म नलिकाएं। Microtubules are regular components of a variety of structures of most animals and plant cells. Some of the cell structure where microtubules occur inside the cilia and flagella, centrioles and basal bodies, nerve processes, mitotic apparatus, cell cortex in meristematic tissues, and such other structure which have flagella or fiber like structure। अर्थात सूक्ष्म नलिकाएं स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं के अतिरिक्त अधिकांश जंतु और पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अवयव हैं। माइक्रोट्यूबुल्स विभिन्न प्रकार की कोशिकीय संरचनाओं जैसे सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी इत्यादि में तथा नर्व प्रोसेसेस में समसूत्री उपकरण अर्थात माइटोटिक अपरेटस, मेरिस्मेटिक सेलुलर कॉर्टेक्स, लंबी सेल कोशिकाओं तथा कुछ अन्य कोशिकाएं संरचनाओं जिनमें फ्लैजिला या फाइबर रूपी रचनाएं पाई जाती हैं उपस्थित होते हैं। नाउ structure of microtubules. Microtubules are tube-like cylindrical structure which are unbranched and can be several micron in length. They are hollow tubules 20 to 30 nanometer in thickness. In transverse sections, a microtubules appear to consist of a circular array of 13 subunits, while in surface view it appears to consist of 13 rows of subunits. These subunits are globular in shape, 5 to nanometer in diameter, and are called protofilaments, which are helically arranged around a center axis। अर्थात माइक्रोट्यूबुल्स नलिका रूपी बेलनाकार संरचनाएं हैं जो अशाखित होती हैं तथा जिनकी लंबाई कई माइक्रोन तक हो सकती है। ये 20 से 30 नैनोमीटर मोटी खोखली नलिका रूपी संरचना होती है। अनुप्रस्थ काट में ये 13 माइक्रोट्यूबुल 13 सब यूनिट्स के गोलाकार क्रम में लगी संरचना के समान दिखाई देती हैं तथा डोर्सल सरफेस में ये इन सब यूनिट्स की 13 कतार के रूप में प्रतीत होती है। इन सब यूनिट्स का डायमीटर 5 to 7 नैनोमीटर होता है। ये सब यूनिट्स प्रोटोफिलामेंट्स कहलाती हैं तथा सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित रहती हैं। नाउ द माइक्रोट्यूबुल्स in a cell may form permanent structure. For example, axonemata of cilia and flagella have a characteristic arrangement of 9 plus 2 microtubules. Similarly, in a centriole, the wall has 9 triplet fibers. The spindle formed at the time of nuclear division also consists of microtubules arranged in a parallel array of microtubules। अर्थात किसी कोशिका में सूक्ष्म नलिकाएं एक स्थायी संरचना का निर्माण करने के लिए संगठित होती है। एग्जाम्पल के लिए सीलिया एंड फ्लैजिला के एक्सोनीमेटा में माइक्रोट्यूबुल्स की 9+2 व्यवस्था होती है। इसी प्रकार सेंट्रियोल की भित्ति में 9 ट्रिपलेट फाइबर्स पाए जाते हैं तथा प्रत्येक फाइबर में 20 नैनोमीटर डायमीटर की 3
ट्यूबल्स पाई जाती हैं। न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान बनने वाले स्पिंडल में भी पैरेलल रूप से व्यवस्थित माइक्रोट्यूबल्स पाई जाती हैं। नाउ केमिकल कंपोजिशन एंड असेंबली। Each subunit, that is called as protofilaments, consists of two globular polypeptides called alpha tubulin and beta tubulin, each with a molecular weight of 60,000 Dalton and an amino acid composition. A dimeric protein is formed due to association of alpha and beta tubulins to form is called tubulin with a molecular weight 1,20,000 Dalton. Tubulin also has some kinase and ATPase activity. There are a number of associated proteins called microtubule associated proteins, that is MAPS. Some of these MAPS along with magnesium ions and GTP. What is GTP? GTP is the guanosine triphosphate, help in the assembly of microtubules. अर्थात माइक्रोट्यूबुल के प्रत्येक सब यूनिट, जिसे प्रोटोफिलामेंट कहते हैं, में 6 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाया जाता है। प्रत्येक सब यूनिट अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन नामक 2 सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती हैं, जिनमें अमीनो एसिड्स का संगठन मस्कुलर प्रोटीन एक्टिन या सूक्ष्म तंतु के समान होता है, जिसका आणविक भार 60,000 डाल्टन होता है। अल्फा तथा बीटा ट्यूबुलिन के संगठन में 1,10,000 से लेकर 1,20,000 डाल्टन आणविक भार वाला डाइमर प्रोटीन ट्यूबुलिन निर्मित होता है। ट्यूबुलिन में काइनेज एंड एटीपेज सक्रियता भी पाई जाती है। माइक्रोट्यूबुल्स की यूनिट डाइमर प्रोटीन ट्यूबुलिन पर बहुलीकृत होकर माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण करती हैं। Now, an important feature of microtubules structure is polarity. अर्थात सूक्ष्म नलिकाएं ध्रुवीय संरचनाएं हैं, जिनका एक शीर्ष धनात्मक और दूसरा शीर्ष ऋणात्मक होता है। In a protofilament, one end will have the alpha subunit exposed while the other end will have the beta subunit exposed. These ends are designated as minus end with alpha subunit and plus end with beta subunits. The minus ends remain embedded in a structure called centrosome and are thus stabilized, and the plus ends are free to grow by adding tubulin molecules and shrink by losing them. These microtubules are thus dynamic, capable of elongating and shrinking. अर्थात माइक्रोट्यूबल्स ध्रुवीय संरचनाएं हैं, जिनका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव होता है। नेगेटिव एंड सेंट्रियोल नामक संरचना में धसे होने के कारण स्थायी होता है, जबकि पॉजिटिव एंड ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर वृद्धि करते हैं तथा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स के पृथक होने पर सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये माइक्रोट्यूबल्स गति की लंबी तथा छोटी होने में सक्षम होती हैं। Now, role in
motility of microtubules. Now, MAPS, that is microtubule associated proteins, can be classified into two groups: non-motor proteins and motor proteins. Motor proteins are of kinesins and kynectin, myosin, dyneins and diactins. Microtubules कई कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि क्रोमोसोम्स के पृथक्करण या गति के लिए, कोशिका के भीतर कोशिका अंगों को पहचानने के लिए होने वाली गति, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होने वाला ट्रांसपोर्टेशन। इन गतियों के अनेक प्रेरक प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित होता है। Thus, microtubule based movement within a given cell requires a variety of motor proteins which need to targeted and activated for initiation of their functions. These are kinesins and kynectin, myosin and dyneins and diactins. Thanks.